न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल कल्याणपुर हाउसिंग रेल साइडिंग में ओवरलोडिंग के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम। आसनसोल रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन, काम ठप, यात्रियों को परेशानी। प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए निशुल्क यात्रा में जाने के लिए फॉर्म भरने का कार्य समाज सेवी कृष्ण प्रसाद द्वारा शुरू। आसनसोल के कल्याणपुर रेल साइडिंग से ओवरलोड वाहनों के गुजरने से हो रही दुर्घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। शाह आलम, प्रशंजीत पतंडी और एमएस मुस्तफा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। एक दिन पहले एक ओवरलोड वाहन ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद एक दुकान में जा घुसा, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। प्रशासन को पहले ही शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ये दुर्घटना घटी। कांग्रेस नेता प्रशंजीत पतंडी और शाह आलम ने कहा कि रेलवे साइडिंग से लगातार ओवरलोडेड वाहन निकलते हैं, जिससे आम जनता खतरे में पड़ती है। नेताओं ने जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस कमिश्नर को पहले ही पत्र भेजकर शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। माध्यमिक परीक्षाएं चल रही है, ऐसे में तेज गति से दौड़ते ओवरलोड ट्रकों से विद्यार्थियों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या इन ट्रकों को निकालने की सरकारी अनुमति मिली है या फिर किसी राजनीतिक संरक्षण में माल सिंडिकेट संचालित हो रहा है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ओवरलोड ट्रकों को नियंत्रित किया जाए, एक निश्चित समय तय हो जब व्यस्त समय में ट्रक सड़क पर न आए। प्रशासन तत्काल कदम उठाए, अन्यथा कांग्रेस आंदोलन तेज करेगी। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और भी बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। গাড়ি বন্ধ করতে হবে দিনের বেলায় র্যাক লোডিং হচ্ছে, কার সাথে প্রশাসন জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। দিনের বেলায় র্যাক লোডিং হচ্ছে, কার সাথে। কালকে দেখেছেন দুর্ঘটনার সময় আমরা সেখানে নিজে প্রেজেন্ট হয়েছিলাম। মানুষকে শান্ত করে সেই জায়গা থেকে গাড়ি বের করতে পুলিশের সাথে সহযোগিতা করেছি। আমরা প্রশাসনকে এটাই বলতে চাই, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেখুন, আমরা চাইলে 1 ঘন্টা আগে এসেও রাস্তা বন্ধ করতে পারতাম, কিন্তু পরীক্ষা 11টায় বসে গেছে, তারপর আমরা 12টার সময় এসেছি। এখন 2টো পর্যন্ত পরীক্ষা, ঠিক এই সময় গাড়িগুলো ছাড়তো আমরা, তাই এখন আজকে দেখুন গাড়ি খালি করে দেওয়া হয়েছে, আজকে নেই। অন্যদিন এই সময় এখান থেকে মানুষ বেরোতে পারে না। আজকে আমরা আসবো সেই খবর পেয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, কিন্তু কদিন বন্ধ করবে? চোর একদিন, 7 দিনের চোর একদিন ধরা পড়বেই। আমরা দরকার হলে এখানে মঞ্চ বাঁধবো, আর এই মোড়ে এই রাস্তায় আমরা বসে থাকবো, 24 ঘন্টা রিলে অনশন করব। দেখি কিভাবে না বন্ধ হয় এই র্যাকে, এই এখান থেকে ইলিগাল ভাবে র্যাক। কাদের স্বার্থে চলছে, কার রোজগার হচ্ছে প্রমাণ দিক। মানুষকে মেরে কে রোজগার করতে চাইছে? আসানসোলের মানুষকে মেরে দিয়ে। এখানে দেখা গেছে বাইরের গাড়িগুলো কাটিয়ে ধরে ওভারলোডিং এ, এখানে তো ওভারলোডিং। আরে দাদা, এটা তো চোরেদেরকে সুবিধা করার জন্য ওভারলোডিং চলছে। রাস্তা নষ্ট হয়ে যাক, মানুষ মরে যাক, চোরেরা রোজগার করুক, আর সেই চোরেদের রোজগারের টাকা পার্টি ফান্ডে যাক। বড় বড় পার্টি অফিস হোক, মিটিং হলে বিরিয়ানির প্যাকেট আসবে তাদের অফিস থেকে। এটাই তো খেলা, এটাই তো খেলা। এই জন্য তো ওভারলোডিং চলছে। নিয়ম আছে, উপরে প্লাস্টিক বাঁধা হয় না, আপনাদেরকে দেখাবো। আমরা সিপি সাহেবকেও দেখিয়ে এসছি। দেখুন, বিনা প্লাস্টিক ব্যাগে, মানে বিনা প্লাস্টিকের ডাস্টে এরা কিন্তু দিনের বেলায় গাড়িগুলোকে বের করছে। সিপি সাহেব বললেন কথা বলছি, কার সঙ্গে কথা বলছেন? ডিএম সাহেবকে বললাম, ডিএম সাহেব ইসিএল কে একটা চিঠি করেছেন। ইসিএল বলছে এই মাল আমার নয়, আমাকে মেল দিয়েছেন ডিএম সাহেব। ডিএম সাহেব যে চিঠি
এগেনস্টে মেল দিয়েছেন, তাতে ইসিএল আমাকে ক্লিয়ার জানিয়েছে এই মাল আমার নয়, এই মাল স্কোর কি কোন কলিয়ারি থেকে মাল আসে, এটা বিভিন্ন স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় যাচ্ছে। তাহলে কাদের স্বার্থে এইসব চলছে? আমরা এখানটাই হচ্ছে সবচেয়ে সঠিক জায়গা। আজকে আমরা মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বড়ভাবে কিছু করছি না, মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলে এখানে মঞ্চ বেঁধে বসবো, দেখি র‍্যাক বন্ধ কতদিনে না হবে। जिला शासक के पास भी गए थे, डीएम साहब से भी हम लोगों ने कहा था, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब से भी हम लोगों ने कहा था कि आसनसोल में जो यहाँ से रैक निकलता है हाउसिंग मोड़ के पास से, ये दिन में रैक निकलने की वजह से एक तो पोल्यूशन पूरा शहर में पूरा आसपास फैल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे दुर्घटना एक्सीडेंट का भी एक बहुत बड़ा डर है। जो आप लोगों ने कल देखा कि शाम के वक्त एक डंपर हाईवा में माल लोड होकर किस तरीके से स्किड किया और नीचे में जाके एक दुकान के पास में टकराया, एक स्कूटी और एक 4 चक्का उस पे जब्त हो गया। ये ऊपर वाला का शुक्र है कि कोई ऐसा घटना नहीं हुआ कि किसी लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन उनके सामान का, गाड़ी का और स्कूटी का नुकसान हुआ। उन दुकानदार जो फुटपाथ के उनको नुकसान हुआ। ऐसा कोई बड़ा दुर्घटना घट जाता तो ये इसी की वजह से, खास करके आप लोगों को मालूम है कि माध्यमिक का परीक्षा हमारे बच्चे शहर में देने के लिए अलग अलग स्टेशन पे अपने जा रहे हैं। आज इसी को लेकर हम लोग यहाँ से जो रैक निकलता है, इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए रोके हैं कि ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या फिर वापस आएंगे उस वक्त कोई दुर्घटना घट जाए, इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे रोका है। और आइंदा हम लोग यहाँ से ये फिर जिला प्रशासन से हम लोग कहेंगे, कि आप लोग इसका कड़ा एक्शन लीजिए। यदि ये रैक यहाँ से नहीं हटा या फिर दिन दहाड़े यहाँ पे नहीं बंद हुआ तो हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग यहाँ पे धरना बनाकर हम लोग 24 घंटा यहाँ पर बैठे रहेंगे। आसनसोल रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि, सुरक्षा की गारंटी और दुर्घटना के मामले में उचित मुआवजा एवं चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के कारण स्टेशन के कई हिस्सों में गंदगी फैल गई है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। सफाई कर्मी चंदन दास ने बताया कि पहले ठेकेदार उन्हें 9,000 रुपए वेतन देते थे, लेकिन नए ठेकेदार के आने के बाद वे 12,000 रुपए वेतन, सुरक्षा की गारंटी और दुर्घटना की स्थिति में उचित मुआवजा एवं चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे काम पर नहीं लौटेंगे और आंदोलन जारी रखेंगे। इस हड़ताल के कारण स्टेशन की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वे जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकालें ताकि स्टेशन की सफाई व्यवस्था बहाल हो सके और यात्रियों को हो रही असुविधा दूर की जा सके। ये समस्या केवल आसनसोल तक सीमित नहीं है। हाल ही में कटिहार रेलवे पिट लाइन के सफाई कर्मियों ने भी वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर हड़ताल की थी, जिससे वहां भी सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई थी। सफाई कर्मियों की मांगे उनकी आजीविका और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़ी है, जिन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। বিক্ষোভ হচ্ছে লেবারের পেমেন্ট। আমাদের যে ওয়েজেস অনুযায়ী শ্রমিক পোর্টাল যে রেট আছে 615, হ্যাঁ, লেবার তো সে রেট কোনোদিন পায়নি। আজকে 16 বছর ধরে কাজ করছে। 16 বছর কাজ করার পরে সেই লেবার আজকে दूसरा কন্ট্রাক্টর পেয়েছে। কন্ট্রাক্টর নিয়ে নিজেরা নিয়ে কে কম রেট দিবে, কে মার খাচ্ছে লেবার মারছে। লেবার 8,000, 9,000, 10,000 কি কারো সংসার চলে? সংসার চলে না। মিনিমাম আমরা ডিআরএম সাহেব এসেছিলেন, উনি বলেছিলেন যে 15,000 তোমাদের পেমেন্ট ওয়েজেস পাওয়া দরকার, উনি নিজে খুদ বলেছিলেন। আজকে दूसरा কন্ট্রাক্টর 9,000 বলছে, 9,000 পেমেন্ট। 9,000 কার সংসার চলে? আমাদের মিনিমাম আমাদের 12,000 টাকা চাইয়ে আর পিএফএসআই অবশ্যই দরকার।
এই জন্য সাফাই আমাদের অপরাধ, আমাদের সাফাইয়ের জন্য আমরা এই আন্দোলন সাফাই করবে আমরা বন্ধ করে রেখেছি, দুসরা কন্ট্রাক্টরকে কাজ করতে দিইনি। কন্ট্রাক্টর চেঞ্জ হয়েছে, আজকে আপনারা কাজ বন্ধ করে আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের মাং পুরা হয়ে যাবে, কাজ শুরু করে দেবো সঙ্গে সঙ্গে। লেবার তো রেডি আছে, ছুটিও নাই, আমাদের কোনো ছুটি সিটেও নাই। লেবার কমিশনে যে রেট, লেবার কমিশন সে হচ্ছে 615 টাকা। সে কেন কন্ট্রাক্টররা জানে না, সে সিনিয়র রেল জানে না, আরে টেন্ডার করছে তারা তো জানা উচিত যে আমাদের লেবার কোথায় যাবে। এতজন লেবার কাজ করছে, লেবাররা কোথায় যাবে? 615,000 টাকা, 10,000 টাকা, 12,000 টাকা কারো সংসার চলে, তবুও আমরা কাজ করে যাচ্ছি, নোংরা গান্না কাজ করে যাচ্ছি। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। प्रयागराज कुंभ स्नान यात्रा का आयोजन समाज सेवी कृष्णा प्रसाद की निशुल्क पहल आवेदन कैंप शुरू। आसनसोल के प्रतिष्ठित समाज सेवी कृष्णा प्रसाद की अनूठी पहल के तहत श्रद्धालुओं को प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए निशुल्क यात्रा का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। इस धार्मिक यात्रा की आवेदन प्रक्रिया आसनसोल के कल्ला मोड़ निकट काजी नसरुल यूनिवर्सिटी स्थित कार्यालय में शुरू हो चुकी है। इस विषय पर समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने बताया कि 22 फरवरी से 24 फरवरी 2025 प्रयागराज कुंभ मेले में पवित्र स्नान यात्रा शुल्क पूरी तरह निशुल्क संस्था द्वारा वहन। आवेदन प्रक्रिया कल्ला मोड़ स्थित कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें और जमा करें। सुविधाएं प्रत्येक विधानसभा में फॉर्म भरने हेतु कंप्यूटर और वॉलंटियर की सहायता उपलब्ध है। ये सेवा भाव से की गई पहल है जिससे श्रद्धालु कुंभ में पुण्य स्नान कर सके। इच्छुक यात्री जल्द से जल्द फॉर्म भरकर अपना स्थान सुरक्षित कर ले। इस यात्रा में सीमांचल व आसपास के श्रद्धालुओं को संगठित रूप से ले जाने की पूरी जिम्मेदारी संस्था द्वारा उठाई जा रही है। श्रद्धालु इस पुण्य यात्रा का लाभ उठाकर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आस्था का महापर्व महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में हम लोग अमृत स्नान के लिए ले जा रहे हैं। उसी क्रम के आज रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन सुबह 7 बजे से लोग आ गए हैं। विभिन्न सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, आसपास नहीं, पश्चिम बर्धमान नहीं, लोग झारखंड से भी आ चुके हैं। कोई जामताड़ा से आ गया, कोई धनबाद से भी आ गया, और मिदनीपुर, आपको लालगंज, ये तो है ही, रानीगंज। सुबह 7 बजे से लोग आ गए। हम लोग का रजिस्ट्रेशन कार्य जो क्रम है, आज पहला दिन था 10 बजे से लेके शाम 5 बजे। हम लोग 11 बजे चालू किए। सारी प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई, तो सिस्टमेटिक वहाँ एंट्री हो रहा है या कंप्यूटर में सारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और 2 कॉपी फोटो। पैन कार्ड नहीं रहने से भी कोई दिक्कत है, आधार और वोटर कंपलसरी है, और 2 कॉपी फोटो। हम लोग रजिस्ट्रेशन करके 22 तारीख को लेकर हम लोग रवाना होंगे। इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। बहुत प्रक्रिया है जो इसको हम लोग विधिवत तरीका से लेके जाना चाह रहे हैं। इंश्योरेंस भी इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रशासन को हम लोगों ने सभी को चिट्ठी दिया है। प्रशासन की तरफ से ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है, पूरा सपोर्ट है।
और सभी को हम लोग चिट्ठी किया, प्रशासन के सब वर्ग, सब अधिकारी, सभी को हम लोग चिट्ठी किया, सब ऊपर से लेकर के सभी को चिट्ठी किया और प्रशासन की मदद है। देखिए 1100 मेरा संकल्प है, लग रहा है कि देखते हैं क्या होता है। अगर आगे बढ़ जाएगा तो देख लेंगे, क्योंकि सेप्टिक सिक्योरिटी बहुत बड़ा सर्वोपरि है ना, सुरक्षा सर्वोपरि है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए देख रहे हैं। अगर कुछ बढ़ेगा तो उस पर हम लोग आपस में बैठ करके, आज 4 तारीख को लाइव आया था, प्रेस मीट किया था, आज 11 तारीख है, इस 7 दिन के अंदर में इतना तैयारी करना ये महाकुंभ का बहुत बड़ी बात है। इसमें पूरी टीम मिलकर हम लोग परिश्रम करके किए हैं। अगर बढ़ेगा तो उस पर हम लोग चिंतन करेंगे बैठ करके, और हमको संभावना है कि बढ़ेगा, 1100 से बहुत ज्यादा हो। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।